فاہم نے بس اتنا ہی بتایا کہ ایمان آپی کے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ رفیق میرا خیال ہے ہمیں اس وقت وہاں جانا چاہیے، شہناز یہی وقت ہے خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ ہو سکتا ہے ہمارے جانے سے حالات کچھ سنبھل جائیں۔ رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اس وقت جانا کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اور آپ سوچیں آصف بھائی اس وقت کس قدر پریشان ہوں گے، لیکن رفیق وہ ہمارے بچے ہیں۔ امبر آپا کے جانے کے بعد ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن صبح کے وقت جب سب کے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ مجھے ان لوگوں کی فکر ہے، اگر ہم اس وقت گئے تو زیادہ بگاڑ کی امید ہے، لیکن ہمیں سمجھداری سے قدم اٹھانا ہوگا، جذبات سے نہیں۔ اب مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے، آپ کچھ بھی کہیں رفیق صاحب، اس وقت وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تسلی رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں انصاف لینے آیا ہوں۔ اور یہ پولیس کیوں؟ فبیہہ میری بیٹی ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے والے اور المیر کو زخمی کرنے والے سے یہی ہے، اس کو پکڑیں، گرفتار کریں اسے۔ اب قانون پوچھے گا۔ نہیں، آپ آریان بھائی کو نہیں جا سکتے، یہ سنگین جرم ہے۔ انہوں نے المیر کو دھکا دیا ہے، وہ شدید زخمی ہے، ان کے خلاف کمپلین ہے۔ آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں، لے چلیں اسے۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ ارے کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب یہ ساری حدیں پار کر رہے ہیں آپ لوگ۔ پیچھے ہٹیں۔ انصاف ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، جب تک اس کا باپ زندہ ہے۔ حد تو اب میں پار کروں گا، میری بیٹی سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ عمران انکل، پرسکون ہو کے بتائیں عمران صاحب۔ انسپیکٹر صاحب یہی ہے آریان، میری بیٹی کا دشمن، اور اسی نے میرے داماد المیر کو بھی مارا ہے۔ الزام کیا ہے آپ کا؟ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، اور اس نے میرے داماد المیر کو اتنی بری طرح زخمی کیا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور میری بیٹی کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے یہ۔ تم جانتے ہو نا یہ ایک سنگین جرم ہے۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچایا۔ بات کچھ اور ہے۔ چپ کرو جھوٹے، دھوکے باز، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو نے میری بیٹی کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ بس بکواس بند کرو۔ میں بے قصور ہوں اور یہ وقت بتائے گا۔ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی تم حوالات میں رہو گے۔ لے کے جاؤ اسے۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لے، اگر میری بیٹی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا نا، میں تیری دنیا اجاڑ دوں گا۔ یہ سب کچھ اسما بیاہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ہمیں چین سے جینے دیتی، ہماری زندگی میں زہر نہ گھولتی، نہ آج میرا بچہ مرتا، اور نہ ہی آریان کو پولیس لے کے جاتی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ بھابھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھر کی بہو جسے میں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا، غلطی میری ہے۔ میں سب کو وقت پر سمجھائی۔ دوستوں، مہک اپنے بچے کے صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوتی
और उसकी ये हालत देखकर घर की नौकरानी सख्त परेशान हो जाती है। वो फबीहा के पास जाकर उसे कहती है कि उसने महक के साथ अच्छा नहीं किया, जबकि ये सारी बातें आसिफ चुपके से सुन रहा होता है। फबीहा जवाब में कहती है कि आखिर उसने क्या किया है, तो नौकरानी गुस्से में कहती है कि वो इसी वक्त जाकर सब घर वालों को बता देगी कि फबीहा ने ही फर्श पर तेल गिराया था ताकि महक फंसल जाए। ये सुनकर आसिफ हैरान रह जाता है, मगर फबीहा नौकरानी को धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जिस पर नौकरानी खौफजदा हो जाती है। आसिफ जब ये सब सुनता है तो गुस्से में आकर फबीहा के पास जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसने एक माँ की सारी खुशियां छीन ली हैं और आखिर उससे ये सब करके क्या मिला। फबीहा रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, मगर आसिफ गुस्से में कहता है कि अलमीर के आते ही वो उसे घर से निकाल देगा। उसके बाद आसिफ अपने कमरे में जाकर शदीद गुस्से और परेशानी में बेहोश हो जाता है। शाम के वक्त फबीहा मौका पाकर आसिफ के कमरे में आती है, तकिया उठाकर उसके मुंह पर रख देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर इन वक्त पर ईमान दफ्तर से वापस आ जाती है और ये मंजर देखकर फबीहा को धुका दे देती है। ईमान के शोर पर शाविर, आर्यन और महक भी आ जाते हैं। सब घबरा जाते हैं और फौरन आसिफ को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में ईमान सबको बताती है कि उसने अपनी आंखों से फबीहा को आसिफ को मारने की कोशिश करते देखा है। शाविर उसकी बात पर यकीन करता है और सब शदीद सदमे में होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि आसिफ की हालत अब बेहतर है, जिस पर सब सिक्का सांस लेते हैं। होश में आने के बाद आसिफ बताता है कि उसे सब याद नहीं, मगर उसने नौकरानी के मुंह से ये सुना था कि महक के बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो फबीहा की वजह से था। ये सुनकर सब लोग हैरान और आर्यन शदीद गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि अब वो फबीहा को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आसिफ की बात सुनकर अस्पताल के कमरे में खामोशी छा जाती है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है और सबके दिलों में गुस्सा, दुख और हैरत एक साथ हम डालते हैं। महक की आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं लेते। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि अगर वाकई फबीहा ही उस सब की जिम्मेदार है तो उसने सिर्फ उसका बच्चा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। शाबिर गुस्से से मुट्ठियां भींच लेता है और आसिफ से वायदा करता है कि अब वो इस मामले को किसी सूरत दबने नहीं देगा और फबीहा की असल हकीकत सबके सामने लाकर रहेगा। ईमान आसिफ के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि अब वो अकेला नहीं है, सच का साथ देने के लिए पूरा घर उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आर्यन का गुस्सा हद से बढ़ चुका होता है। वो फैसला कर लेता है कि जैसे ही फबीहा सामने आएगी वो उससे हर सवाल का जवाब लेगा और उसे अपने किए की सजा दिलवा कर रहेगा। उधर फबीहा, जो घर से निकाली जा चुकी होती है, तन्हा सड़क पर खड़ी रो रही होती है, मगर उसके आंसुओं में निदामत के बजाय खौफ और साजिश साफ झलक रही होती है। वो दिल ही दिल में नए मंसूबे बनाने लगती है कि किस तरह खुद को बेगुनाह साबित किया जाए और सारा जाम महक के सिर डाल दिया जाए। घर में वापस आकर सब लोग एक दूसरे को हौसला देते हैं, मगर फजा में बेयकीनी और खौफ अब भी मौजूद होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि फबीहा जैसी औरत आसानी से। दोस्तों, कहानी अब एक निहायत नाजुक मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां हर फैसला आने वाले तूफान की समत तय करने वाला होता है। नौकरानी हिम्मत करके शाविर और आर्यन के सामने वो सब कुछ बयान करती है जो उसने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना था। वो बताती है कि किस तरह फबीहा ने जानबूझकर फर्श पर तेल गिराया और बाद में उसे धमकाकर खामोश रहने पर मजबूर किया। ये एतराफ़ सुनकर आर्यन का गुस्सा बेकाबू हो जाता है, मगर शाविर उसे सब्र की तलकीन करता है और कहता है कि अब जज्बात नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा ताकि फबीहा को उसके इंजाम तक पहुंचाया जा सके। ईमान ये सारी बातें सुनकर महक के पास जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब सच छिप नहीं सकेगा और उसका हक उसे ज़रूर मिलेगा, जिस पर महक के दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद जाग उठती है। दूसरी जानिब फबीहा को भी महसूस होने लगता है कि ज़मीन इसके कदमों के नीचे से खसक रही है। वो रातों को सो नहीं पाती और हर आहट पर चौंक जाती है। उसे डर होता है कि कहीं उसके राज खुल न जाएं। अलमीर अब इसके रवैये में वाज़ेह तब्दीली महसूस करने लगता है। वो इसके सवालों से घबराना और बातें बदलना देखकर शक में मुब्तला हो जाता है। घर में एक खामोश जंग जारी होती है, जिसमें हर कोई सच के मंतज़र होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही हकीकत सामने आएगी रिश्तों के कई चेहरे हमेशा के लिए बदल जाएंगे। दोस्तों, हालात अब इस हद तक पहुंच चुके होते
हैं कि हर किरदार के दिल में एक खौफ और एक उम्मीद पलने लगती है। आसिफ नौकरानी की बातें सुनकर अंदर से टूट सा जाता है। उसे बार बार यही ख्याल सताता है कि उसने अपनी औलाद की तरबियत में कहाँ कमी छोड़ दी थी कि फबीहा इस हद तक गिर गई। वो शावीर और आर्यान को करीब बिठाकर सख्त लहजे में कहता है कि अगर ये सब सच साबित हो गया तो वो खुद फबीहा के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। महक जब ये सुनती है तो उसके आंसू एक बार फिर बहने लगते हैं, मगर उस बार उन आंसुओं में कमजोरी के बजाय इंसाफ की तलब शामिल होती है। ईमान महक का हाथ थामकर उसे हौसला देती है और कहती है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। देर जरूर होती है मगर अंधेर नहीं। दूसरी तरफ उलमीर का दिल अब बड़ी तरह उलझ चुका होता है। वह फबीहा के चेहरे पर झूठ की परछाइयां साफ देखने लगता है और इसे एहसास होने लगता है कि शायद वो अब तक एक फरेब में जी रहा था। फबीहा भी जान जाती है कि अब उसकी चालें ज्यादा देर नहीं चल सकेंगी। उसीलिए वो एक आखिरी खतरनाक कदम उठाने का सोचने लगती है, ताकि या तो सबको खामोश करा दे या खुद को मुकम्मल तौर पर बेगनाह साबित कर सके। घर के हर कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जैसे दीवारें भी आने वाले तूफान की गवाह बनने वाली हों, क्योंकि सबको अंदाजा हो चुका होता है कि सच सामने आते ही ये घर हमेशा के लिए पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, अब कहानी फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो जाती है, जहां हर राज पर्दे से बाहर आने के करीब होता है। अलमीर दिल की सख्ती के साथ आसिफ से मिलने आता है और इसके सामने फबीहा के बदलते रवैये, उसकी घबराहट और झूठ पर मबनी बातों का जिक्र करता है, जिस पर आसिफ ठंडी सांस लेकर कहता है कि अब सच को छिपाना किसी के बस में नहीं रहा। आसिफ सबको एक जगह जमा करके नौकरानी की गवाही और वाकयात की कड़ियां जोड़ता है तो तस्वीर साफ होती चली जाती है। महक खामोशी से सब सुनती रहती है। उसके चेहरे पर दुख के साथ इज़्म झलकने लगता है। वो कहती है कि अगर इंसाफ के लिए उसका बयान दरकार हुआ तो वो हिम्मत नहीं हारे। दोस्तों, अब हालात उस नहज पर पहुंच चुके होते हैं कि हर किरदार के दिल में छिपा खौफ और सच एक दूसरे से टकराने लगता है। फबीहा को जब अंदाजा होता है कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो घर वालों के सामने खुद को मजलूम साबित करने के लिए रोना धोना शुरू कर देती है, मगर उसके आंसू अब किसी के दिल को नरम नहीं कर पाते। आसिफ सख्त लहजे में उसे बताता है कि जो जख्म उसने महक को दिए हैं उनका हिसाब अब जरूर होगा, क्योंकि एक माँ की आहें कभी रायगा नहीं जाते। महक हिम्मत करके सबके सामने खड़ी होती है और भराई हुई आवाज में कहती है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बर्दाश्त किया है, मगर अब वो खामोश नहीं रहेगी। आर्यन का सब्र जवाब दे जाता है और वो फबीहा को आईना दिखाते हुए कहता है कि उसकी होश और जद ने पूरे घर को जहन्नम बना दिया है। ईमान शावेर का हाथ थाम कर उसे संभालती है और कहती है कि अब जज्बात नहीं बल्कि सच और कानून बोलेगा। अलमीर खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में नदामत साफ झलक रही होती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने जिस पर अंधा एतमाद किया वही सबसे बड़ा धोखा निकला। घर के हर फर्द पर यह हकीकत आश्कार हो जाती है कि यह सिर्फ फबीहा की शिकस्त नहीं बल्कि सब्र, सच और मजलूम की जीत है, और आने वाले दिनों में इस घर की फजा हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोस्तों, उस इंकिशाफ के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और हर चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और करब नुमायां हो जाता है। आसिफ फबीहा की तरफ देखते हुए फैसला के अंदाज में कहता है कि अब ये मामला सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कानून के सामने भी पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस जुल्म ने एक माँ की गोद जाड़ी हो उसे माफ नहीं किया जा सकता। महक आहिस्ता आहिस्ता आसिफ के करीब आती है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक मजबूत हौसला भी नजर आता है। वो कहती है कि उसे किसी से हमदर्दी नहीं चाहिए, बस इतना चाहती है कि सच सबके सामने आ जाए ताकि आइंदा कोई और औरत इस करब से न गुजरे। एमन महक के अल्फाज सुनकर रो पड़ती है और उसे गले लगाकर वादा करती है कि वो हर कदम पर उसका साथ देगी। शावीर और आर्यान इस बात पर मुत्तफक हो जाते हैं कि अब फबीहा को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह करने की कोशिश की है। अलमेर का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। वो टूटे हुए लहजे में कहता है कि उसने अंधा एतमाद करके सबसे बड़ी गलती की और अब वो भी सच का साथ देगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। फबीहा चारों तरफ से खुद को घरा हुआ महसूस करती है। इसकी साजशी मुस्कुराहट अब खौफ में बदल चुकी होती है और उसे पहली बार एहसास होता है कि
ताकत और चालाकी हमेशा नहीं जीतते। घर की फजा में एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे सबको मालूम हो कि यह अंजाम एक नए आगाज की निशानी है, जहां इंसाफ की राह कठिन सही मगर मंजिल अब ज्यादा दौर नहीं रही। दोस्तों, अब कहानी एक निहायत नाजुक और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। फबीहा घर में अकेली और खौफजदा महसूस करती है, क्योंकि उससे अंदाजा हो चुका होता है कि उसकी हर चाल बेनकाब होने वाली है। वो हर कदम सोचकर उठाने की कोशिश करती है, मगर घर के हर फर्द की आंखों में उसकी हकीकत साफ दिखाई देती है। आसिफ ने सख्त लहजे में ऐलान किया होता है कि अब कोई झूठ या धोखा कामयाब नहीं होगा। दोस्तों, अब कहानी एक निहायत संगीन और कशीदा मोड़ पर पहुंच चुकी है। फबीहा का खौफ और घबराहट बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि अब उसके हर झूठ और साजिश की हकीकत सबके सामने आने वाली है। वो हर लम्हा सोचती है कि किस तरह खुद को बेकसूर जाहिर करे और सबको धोखा दे, मगर घर के हर फर्द की आंखों में उसकी असलियत साफ नजर आ रही होती है। आसिफ सख्त और प्राज़म लहजे में सबके सामने ऐलान करता है कि वो अब किसी को रियायत नहीं देगा, और जो जुल्म में महक और उसके बच्चे के साथ हुआ उसका हिसाब कानूनी और अखलाकी तौर पर लिया जाएगा। महक के दिल में एक नई हिम्मत जाग उठती है। वो रो रो कर लेकिन मजबूत आवाज में सबके सामने कहती है कि वो इंसाफ की जंग लड़ेगी और किसी भी हद तक हक के लिए लड़ने से नहीं घबराएगी। ईमान और शाविर महक का साथ देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि अब कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्यान गुस्से और हक के जज्बे के साथ ऐलान करता है कि फबीहा की हर साजिश बेनकाब होगी और वो किसी सूरत उसे कामयाब नहीं होने देगा। अलमेयर भी अब हकीकत समझ चुका होता है और वो फबीहा के झूठ और फरेब के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि अंधा एतमाद कितनी बड़ी कीमत अदा करवा सकता है। फबीहा की पुरानी मुस्कुराहट खौफ में बदल चुकी होती है और वो पहली बार अपने किए पर लर्ज उठती है। घर में हर तरफ एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे सब जानते हों कि अब न सिर्फ फबीहा की हकीकत सामने आएगी, बल्कि इंसाफ के जरिए ये घर एक बार फिर अपने असल हकदारों के साथ मजबूत और महफूज होगा और आने वाले दिनों में कोई भी धोखा या साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अब कहानी एक इंतहाई नाजुक और तनाव से भरे मुरहले में दाखिल हो गई है। फबीहा अपने हर कदम पर खौफ महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसे बखूबी अंदाजा हो चुका होता है कि अब उसके तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब होने वाली हैं। वो हर लम्हा ये सोचती है कि किस तरह अपनी सफाई पेश करे और सबको धोखा दे, मगर घर के हर फर्द की आंखों में उसकी असलियत साफ झलक रही होती है। आसिफ अब न सिर्फ अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सबके सामने उसूली मौक़िफ़ अख्तियार करता है, बल्कि ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और उसके बच्चे के साथ हुआ उसका हिसाब कानूनी और अखलाकी तौर पर लिया जाएगा और अब किसी भी कस्म की रियायत नहीं की जाएगी। महक की आंखों में दर्द के साथ इज़्म पैदा होता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए हर हद तक जाने को तैयार है और अब खामोश नहीं रहेगी। ईमान उसके साथ खड़ी होकर इसे हौसला देती है। शाविर और आर्यान भी मुतहर्रिक होकर फैसला करते हैं कि फबीहा की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। अलमीर, जो पहले फबीहा के झूठ और फरेब में मुब्तला था, अब हकीकत का सामना करके उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। फबीहा की पुरानी शौक और साजिशी मुस्कुराहट खौफ और इत्तराब में बदल चुकी होती है और वो पहली बार एहसास करती है कि उसका खेल खत्म होने के करीब है। घर की फजा में एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे हर दीवार, हर कमरा इंसाफ के इंतजार में हो और सब जानते हों कि अब न सिर्फ फबीहा की हकीकत आश्कार होगी, बल्कि ये घर दोबारा अपने असल हकदारों के साथ मजबूत और महफूज होगा और आने वाले दिनों में कोई धोखा या फरेब कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कहानी अब एक इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार के दिल में किशमकिश। दोस्तों, कहानी अब एक इंतहाई नाजुक और फैसलाकन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर किरदार के जज्बात उरूज पर पहुंच चुके होते हैं। फबीहा हर लम्हा खौफ और इत्तराब में मुब्तला रहती है, क्योंकि उसे बखूबी एहसास हो चुका होता है कि अब उसके तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब होने वाली हैं। वो बार बार सोचती है कि किस तरह खुद को बेकसूर साबित करे और सबको धोखा दे, मगर घर के हर फर्द की आंखों में उसकी असलियत साफ झलक रही होती है। आसिफ गुस्से और दर्द के बावजूद मजबूत रहते हुए ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और इसके बच्चे के साथ हुआ, इसका हिसाब लाजिमन लिया जाएगा और अब किसी भी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी।
महक के दिल में पहली बार गहरा इज़्म पैदा होता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और इंसाफ के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईमान महक के साथ खड़ी होकर उसे यकीन दिलाती है कि अब कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और शावेर और आर्यान भी मुत्तहद होकर फबीहा की हर साजिश नाकाम बनाने का अहद करते हैं। अलमीर, जो पहले फबीहा के झूठ और धोखा में मुब्तला था, अब हकीकत देखकर उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि अंधा एतिमाद खतरनाक नताइज ला सकता है। दूसरी तरफ फबीहा की पुरानी शौक और साजिशी मुस्कुराहट खौफ और निदामत में बदल चुकी होती है, और वो पहली बार एहसास करती है कि उसका खेल खत्म होने के करीब है। पूरे घर में एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे हर दीवार और हर कमरा इंसाफ के इंतजार में हो, और सब जानते हैं कि अब न सिर्फ फबीहा की हकीकत सामने आएगी, बल्कि ये घर दोबारा अपने असल हकदारों के साथ मजबूत, महफूज और खुशहाल होगा, और आने वाले दिनों में कोई धोखा या फरेब कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कहानी अब एक और इंतहाई हसास और कशीदा मोड़ पर पहुंच चुकी है। घर में हर तरफ तनाव और खौफ की फ़ज़ा छा गई है। हर फर्द अपने जज्बात और ख़यालात को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। फबीहा हर कदम पर खौफ महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि इसके तमाम झूठ, धोखा और साजिशें अब बेनकाब होने वाली हैं। वो बार बार अपने आप से कहती है कि अभी कुछ न कुछ तरीक़ा निकालना होगा, मगर घर के हर फर्द की नज़रों में इसकी असलियत साफ नज़र आ रही होती है। आसिफ गुस्से, दर्द और मायूसी के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहता है और ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और उसके बच्चे के साथ हुआ, उसका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। महक दिल में मजबूती और हौसले के साथ खड़ी हो जाती है और सबके सामने कहती है कि वो इंसाफ के लिए हर हद तक जाने को तैयार है और अब खामोश नहीं रहेगी। ईमान महक का हाथ थाम कर उसे यकीन दिलाती है कि अब कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और शावेर और आर्यान भी फैसला करते हैं कि फबीहा की हर साजिश नाकाम होगी और कोई भी दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अलमीर, जो पहले फबीहा के झूठ में मुब्तला था, अब हकीकत जानकर उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि अंधा एतिमाद कितनी बड़ी कीमत अदा करवा सकता है। दूसरी तरफ फबीहा की पुरानी शोखी और साजिशी मुस्कुराहट अब खौफ, इत्तराब और नदामत में बदल चुकी होती है, और वो पहली बार समझती है कि उसका खेल खत्म होने के करीब है। पूरे घर में एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे हर दीवार, हर कमरा इंसाफ के इंतजार में हो, और सब जानते हैं कि अब न सिर्फ फबीहा की हकीकत सामने आएगी, बल्कि ये घर दोबारा अपने असल। दोस्तों, कहानी अब एक और ज़्यादा कशीदा और नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है, जहां हर किरदार के दिल में खौफ, गुस्सा और इत्तराब एक साथ जन्म ले रहा होता है। फबीहा अब हर लम्हा ये सोचती रहती है कि उसके तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब होने वाली हैं, और वो बार बार अपने आप से सवाल करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए ताकि वो खुद को बेकसूर साबित कर सके। मगर घर के हर फर्द की आंखों में उसकी असलियत साफ झलक रही होती है, और हर छोटा सा इशारा उसकी घबराहट में इजाफा करता है। आसिफ अब अपने गुस्से और सदमे के बावजूद मजबूती से खड़ा होता है और ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और उसके बच्चे के साथ हुआ, उसका हिसाब हर हाल में लिया जाएगा, और अब किसी भी कसम की रियायत या नजरअंदाजी मुमकिन नहीं होगी। महक के दिल में पहली बार गहरा इज़्म और हौसला पैदा होता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और इंसाफ के हुसूल के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईमान महक के साथ खड़ी होकर उसे यकीन दिलाती है कि अब कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और शावीर और आर्यान भी मुत्तहद होकर फैसला करते हैं कि फबीहा की हर साजिश नाकाम होगी और कोई दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अलमीर, जो पहले फबीहा के झूठ और धोखा में मुब्तला था, अब हकीकत देखकर उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका होता है कि उनका एतमाद कितनी बड़ी कीमत अदा करवा सकता है। दूसरी तरफ फबीहा की पुरानी शोखी और साजिशी मुस्कुराहट अब खौफ, इत्तराब और नदामत में बदल चुकी होती है, और वो पहली बार समझती है कि उसका खेल खत्म होने के करीब है। पूरे घर में एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे हर दीवार और हर कमरा इंसाफ के इंतजार में हो, और सब जानते हैं कि अब न सिर्फ फबीहा की हकीकत आश्कार होगी, बल्कि ये घर दोबारा अपने असल हकदारों के साथ मजबूत, महफूज और खुशहाल होगा, और आने वाले दिनों में धोखा
फरेब या साजिश का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, कहानी अब एक इंतहाई शदीद और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां घर का माहौल नहायत कशीदा और तनाव से भरा हुआ है। फबीहा हर लम्हा खौफ और घबराहट में मुब्तला रहती है। उसे ये एहसास बार बार सताता है कि उसके तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब होने वाली हैं। वो बार बार अपने आप से सवाल करती है कि अब क्या करे, कैसे खुद को बेकसूर जाहिर करे और किस तरह अपनी सफाई पेश करे ताकि इसे सज़ा न मिले। मगर घर के हर फर्द की नज़रों में इसकी हकीकत साफ नज़र आ रही होती है। आसिफ गुस्से, सदमे और मायूसी के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहता है और ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और उसके बच्चे के साथ हुआ, उसका हिसाब लाजमन लिया जाएगा और अब किसी भी शक्ल में रियायत मुमकिन नहीं होगी। महक के दिल में पहली बार शदीद इज़्म और हौसला पैदा होता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और इंसाफ के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, कहानी अब एक इंतहाई नाजुक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार के दिल में खौफ, इत्तराब और गुस्सा एक साथ जन्म ले रहा होता है। फबीहा हर लम्हा ये सोचती रहती है कि अब उसके तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब हो जाएंगी और वो बार बार अपने आप से सवाल करती है कि अब क्या करे, किस तरह खुद को बेकसूर जाहिर करे और सबको धोखा दे। मगर घर के हर फर्द की नज़रों में इसकी असलियत वाज़ेह तौर पर झलक रही होती है। आसिफ गुस्से और सदमे के बावजूद मजबूती से खड़ा होता है और ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और इसके बच्चे के साथ हुआ, उसका हिसाब हर हाल में लिया जाएगा और अब किसी भी कसम की रियायत या नज़रअंदाजी मुमकिन नहीं होगी। महक के दिल में गहरा उज़्म पैदा होता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए हर हद तक जाने को तैयार है और अब खामोश नहीं रहेगी। ईमान महक के साथ खड़ी होकर उसे यकीन दिलाती है कि अब कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और शावीर और आर्यान भी मुत्तहद होकर फैसला करते हैं कि फबीहा की हर साजिश नाकाम होगी और कोई दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अलमीर, जो पहले फबीहा के झूठ और धोखा में मुब्तला था, अब हकीकत देखकर उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका होता है कि उनका एतमाद कितनी बड़ी कीमत अदा करवा सकता है। दूसरी तरफ फबीहा की पुरानी शोखी और साजिशी मुस्कुराहट अब खौफ, इत्तराब और नदामत में बदल चुकी होती है और वो पहली बार समझती है कि उसका खेल ख़त्म होने के करीब है। पूरे घर में एक भारी खामोशी छा जाती है, जैसे हर दीवार, हर कमरा इंसाफ के इंतज़ार में हो और सब जानते हैं कि अब न सिर्फ फबीहा की हकीकत सामने आएगी, बल्कि ये घर दोबारा अपने असल हकदारों के साथ मजबूत, महफूज और खुशहाल होगा। आने वाले दिनों में धोखा, फरेब या साजिश का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा और हर फर्द इंसाफ की फतह के करीब आने की संजीदगी को महसूस करता है। दोस्तों, कहानी अब एक इंतहाई संगीन और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार के जज्बात अरूज पर हैं और हर लम्हा एक नया बहरान जन्म लेने वाला है। फबीहा अब मुकम्मल तौर पर खौफ और इत्तराब में मुब्तला हो चुकी होती है। वो हर लम्हा ये सोचती रहती है कि उसके तमाम झूठ और साजिशें बेनकाब हो जाएंगी और उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो बार बार अपने दिमाग में मंसूबे बनाती है कि किस तरह खुद को बेकसूर जाहिर करे, मगर घर के हर फर्द की नज़रें इसके झूठ और हकीकत को बेनकाब कर रही होती हैं, जिससे फबीहा के दिल में शदीद घबराहट और खौफ पैदा होता है। आसिफ अपने सदमे और गुस्से के बावजूद सबके सामने ऐलान करता है कि जो जुल्म महक और उसके बच्चे के साथ हुआ, उसका हिसाब लाजमन लिया जाएगा और अब किसी भी कस्म की रियायत या माफ़ी मुमकिन नहीं होगी। महक के दिल में इज़्म और हौसले की एक नई लहर जाग उठती है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी और इंसाफ के हुसूल के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईमान महक के साथ खड़ी होकर उसे यकीन दिलाती है कि अब कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और शावीर और आर्यान भी मुत्तहद होकर फैसला करते हैं कि फबीहा की हर साजिश नाकाम होगी और दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अलमीर, जो पहले फबीहा के झूठ और धोखा में मुब्तला था, अब हकीकत देखकर इसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि इंधा एतमाद कितनी बड़ी कीमत अदा करवा सकता है। दूसरी तरफ फबीहा की पुरानी शौक और साजिशी